I am YK Bhagat, PGT Physics from Kendra Vidyalaya Sivni. At first, very thanks to KVS RO Jabalpur to give an opportunity to make online video lessons on the chapter Alternating Current. Dear student, I deliver my video lesson in chapter 7 Alternating Current, in which some topics such as induced EMF in a rotating coil, instantaneous EMF, average value of EMF, root mean square value of EMF, what is reactance, impedance, and AC circuit with inductor, capacitor and resistance and series LCR circuit we discussed here. Dear student, it is our first topic, induced EMF in a rotating coil. Induced EMF in a rotating coil. We studied about induced EMF in previous chapter, electromagnetic induction. EMF is induced due to change in magnetic flux. Due to change in magnetic flux. And magnetic flux is given by phi equal to NBA cos theta. NBA cos theta. The magnetic flux given by this formula, where n number of turns in a coil, b magnetic field in which the coil is placed, a area of coil, and theta orientation of the coil. What is the angle made by normal of coil with magnetic field? We discussed about how the EMF is induced due to rotation of coil. Suppose we consider here a straight dotted line represent the magnetic field. In this magnetic field, a rectangular coil PQ is placed perpendicular to it. When this coil is rotated, now PQ is the initial position of coil. PQ is initial position of coil which is placed perpendicular to magnetic field, and P dash Q dash is the position of coil after time t, making angle theta with B. In this situation, we consider omega is angular velocity. Suppose this coil rotates with omega angular velocity. Then omega equal to theta upon t. That means theta will be equal to omega t. Theta equal to omega t. Now we know that when coil is rotated in a uniform magnetic field, the magnetic flux linked with that coil is changed. And the change in magnetic flux is given by phi equal to NBA cos theta. NBA cos theta. This formula we studied in previous chapter, electromagnetic induction. Now we have to find out what will be the amount of the magnitude of EMF induced due to that rotation of coil in magnetic field. For this, we apply Gauss theorem. The induced EMF equal to minus d phi upon dt. It is the Lenz law. According to Faraday's and Lenz law, the EMF induced is given by E equal to minus d phi by dt. Now we put the value of phi. Phi means magnetic flux. Minus d by dt, value of phi, NBA cos theta. NBA cos theta. Differentiate this number. NBA is taken as common, minus NBA. The value of theta can be written as omega t from here. Theta can be written as this. Then the differentiations of cos omega t minus NBA. The differential cos omega t is minus omega cos omega t. Sorry, minus sin
ओमेगा टी। आपको मालूम है कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। एक्स के टर्म्स में लिया, टी के टर्म्स में ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो इनटू में आ गया है डबल डेरिवेटिव के थ्रू। तो कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस का माइनस साइन होता है और दिस ओमेगा इज हियर। नाउ माइनस माइनस प्लस, देन इट विल बी एन ओमेगा एन बी ए ओमेगा sin omega t. It is a formula for induced EMF in a rotating coil. Dear student, the value of induced EMF is maximum when its value is 1. It can be written as E equal to E naught sin omega t. It is the formula for induced EMF in a rotating coil, equation number 1. Here E naught equal to NBA omega, NBA omega. The value of E naught is replaced in NBA omega. It is known as peak value. Peak value or maximum value of EMF. Peak value of EMF or maximum value of EMF. You are just like two amplitudes. Okay. ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम EMF की जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा इन टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, इन पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटेटिंग कॉइल? इस इक्वेशन से हम लोग इसके नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो वेरी सिंपल, जब इसका ग्राफ प्लॉट होगा, हमने ये वैल्यूज लिए ई इंड्यूस्ड EMF विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आर ओमेगा टी। ओमेगा टी और ई के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका जो ग्राफ होगा वो साइन कर्व के फॉर्म में आएगा, सबको मालूम है साइन कर्व होगा। फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट द इंड्यूस्ड EMF इज पॉजिटिव फॉर हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल, 0 पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। फ्रॉम दिस ग्राफ it is clear that induced EMF is positive for half rotation of coil and becomes negative for next half of rotation of coil. So this EMF is called alternating current. So dear student, we know that in chapter current electricity, what is alternating current? So alternating current is that current whose magnitude as well direction both change with respect to time. यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पहले 0 था, बढ़कर मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना हुआ, E नॉट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, मीन्स हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो गया, फिर नेक्स्ट हाफ में सेम वेरिएशन है मैग्नीट्यूड में बट नेगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इट इज द फार्मूला फॉर अल्टरनेटिंग करंट, also name as instantaneous value of EMF। हमने अभी यहाँ पे दो EMF फाइंड आउट किए, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस EMF और इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ EMF। इंस्टेंटेनियस EMF दैट मीन डिपेंड ऑन टाइम, E naught maximum value of EMF, it is called instantaneous EMF. Now we discuss about average value of EMF, RMS value of EMF in next topic. Then we take another topic. What will be the its maximum value, average value and RMS value of EMF.
In here we obtain E equal to E naught sin omega t. अभी हमने ये निकाल लिया है. E naught, where E naught equal to NVA omega. E की वैल्यू थी NVA omega. Now our topic mean value. Mean value or average value of EMF. Mean value or average value of EMF. Our topic is that. तो स्टूडेंट ये देखें कि अभी हमने एक ग्राफ प्लॉट किया अल्टरनेटिंग करंट का, और अल्टरनेटिंग करंट में इस टाइप की एक साइन कर्व ऑब्टेन हुआ है ओमेगा टी रिस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ई फॉर ईएमएफ. फ्रॉम दिस ग्राफ it is observed that for a complete one cycle of EMF, in a first half cycle, the magnitude of EMF go on increasing and becomes positive, but for the next half cycle, its value is negative. Thus, for complete one cycle, its average or mean value will be zero. क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ साइकिल में EMF की वैल्यू पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में EMF की वैल्यू निगेटिव है, तो कंप्लीट वन साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो होगी. दैट मीन फॉर कंप्लीट वन साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF विल बी जीरो. एवरेज वैल्यू उसकी जीरो होगी. थ्योरेटिकली कैसे बताया हमने कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती हैं और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव होती हैं, तो कंप्लीट वन साइकिल में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. इसी को हम मैथमेटिकली भी देखें कि मैथमेटिकली इसकी वैल्यू जीरो कैसे आती है. एवरेज वैल्यू से निकालना है. एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो टू टी, मतलब टी फॉर टाइम पीरियड. आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्लीट वन साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट होता है. ओके, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे EMF का E बाय टी इंटू डी टी. फ्रॉम दिस फार्मूला वी ऑब्टेन इट्स एवरेज वैल्यू. जब भी किसी का एवरेज वैल्यू निकालना हो तो आपको देखना है कि कंप्लीट वन साइकिल है तो जीरो टू टी, टी फॉर टाइम पीरियड इंटीग्रेट करेंगे. हाफ साइकिल है तो टी बाई टू होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इसकी वैल्यू जो चेंज होगी. फ्रॉम दिस फार्मूला वी पुट द वैल्यू ऑफ E. की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन टी डी टी. इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है E नॉट बाय टी बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी एक टर्म्स होगी E नॉट बाय टी. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. प्रीवियस टॉपिक में मैंने क्या बताया था कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स्ट्रा फंक्शन इनटू में आ जाता है बाय डबल डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है जो एक्स्ट्रा फंक्शन ओमेगा है वो अपॉन में आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएशन से उल्टा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. एंड ये लोअर और अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये लोअर एंड अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी फॉर कंप्लीट वन साइकिल. E नॉट बाय टी इक्वल टू, सॉरी लिमिट पुट करेंगे, ओमेगा को भी बाहर कर दिया हमने और माइनस को भी बाहर ले लिया, या अंदर बचा केवल कास ओमेगा टी. कास ओमेगा टी, तो पहले अपर लिमिट पुट किया स्मॉल टी के प्लेस पे. ठीक, लिमिट कहाँ पुट करना होता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है. आपने देखा है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल टी की वैल्यू अपर और लोअर लिमिट पुट होगी यहाँ पे. ऐसा नहीं कि केवल ओमेगा टी के प्लेस पे कंप्लीटली टी रखेंगे. ओके, माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूं मैं, ये वाला माइनस तो पहले बाहर निकल गया. कास ओमेगा टी पहले अपर लिमिट रखा स्मॉल टी के प्लेस पे कैपिटल टी, और ये हो जाएगा कास ओमेगा इंटू जीरो.
ये लिमिट पुट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस ई नॉट टी ओमेगा इन ब्रैकेट कास ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी होती है और ये टी, और माइनस एक कास जीरो की वैल्यू 1। ओके, टी टू टी कैंसल एंड कास 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो बड़ा सिंपल है, याद रखना है, कास ये साइन कर्व होता है और कास कर्व कैसा होगा, इस टाइप का कास कर्व होगा। तो ये 0, यहाँ पर पाई बाय 2, ये पाई, ठीक। तो यहाँ जो पाई आएगा तो 2 पाई यहाँ पे आएगा, कंफर्म। तो कास 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पे 1 रखा हमने, तो 1 माइनस 1 0, देन वी गेट 0। मीन्स क्या हुआ, जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक। एवरेज वैल्यू 0। तो मैथमेटिकली भी हम बता सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। वाई 0 बिकॉज इन हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव। तो आपको ऐसा मालूम भी रखना है और कुछ आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करना है। यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करके बताया है, आपको कुछ आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करना है। अभी वो आइडेंटिटी भी लिख दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट 1 साइकिल के लिए हुआ। अब सपोज करें इसको हाफ साइकिल के लिए निकालना, हाफ साइकिल के लिए इंड्यूस एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, यही इस डेरिवेशन में मैं चेंज करके बता रहा हूँ। हाफ साइकिल मीन्स हाफ साइकिल में ईएमएफ की वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी होगी हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है t/2 और यहाँ भी t/2 लिख देंगे, बस ये चेंज आ जाएगा। t/2 लिमिट में चेंज होगी, यहाँ पे t/2 है तो ये t/2 तो ये बाहर आएगा तो ये 2e0/t और ये t/2 इंटीग्रेशन होगा। t/2 इंटीग्रेशन के बाद ये 2 है यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन होगा तो वैल्यू पुट करेंगे हम। बस मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, कहाँ 2 लिखना था तो ये हमने 2 भी लिख देगा साथ में, -2 आएगा क्योंकि यहाँ शायद माइनस कॉमन निकाला हमने, 2 तो इससे है, अपॉन टी ओमेगा। और वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक का बना तो दूसरा बनता है, -2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी ओमेगा। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, t/2 आएगी। इन ब्रैकेट चले, cos ओमेगा की वैल्यू 2 पाई t, तो 2 पाई t इंटू t/2, तो केवल बचेगा कितना, पाई, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, इतना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। मैंने अभी ग्राफ ड्रा करके बताया था आपको कि इसका जो ग्राफ है ऐसा चलता है, तो पाई वैल्यू कहाँ पे आएगी है, तो ये -1 वैल्यू हो गई। तो यहाँ हमने -1 लिखा, तो -1 एंड -1 -2 का मल्टीपल इस पे हो जाएगा, तो -2 से ये 4 हो जाएगा, +4। ओके, अब टी ओमेगा को चेंज कर रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई t, t to t cancel, then we get epsilon naught 2 epsilon naught upon pi। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर 1 साइकिल अब हाफ साइकिल इज 2 epsilon naught by pi। उसमें क्या आया था, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए 0 आ गया था, और यहाँ पे आया है 2 epsilon naught by pi। अब हमको पाई की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू रखकर 2 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.637 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 0.637 ये किसकी वैल्यू है, 2/पाई की, तो इतनी वैल्यू आ गई। अब मैं इधर आगे चल रहा हूं कि क्या क्या हमने भी ऑब्टेन किया। तो हमने ऑब्टेन ये किया, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E = E0 sin ओमेगा t है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ NV ओमेगा, ये भी ऑब्टेन किया।
अब इसके बाद एवरेज वैल्यू निकाला, तो एवरेज वैल्यू कंप्लीट वन साइकिल के लिए 0 है, फॉर वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल के लिए 0 है, बट टू E नॉट बाय पाई इट इज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इसी को हमने पॉइंट में चेंज किया तो कितना आया 0.637 एप्सिलॉन नॉट। परसेंटेज में निकालें तो क्या आ जाएगा, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे फाउंड होते हैं इसमें भी देखना है। तो एवरेज वैल्यू कितनी आई, एवरेज वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू का 63% उसकी एवरेज वैल्यू होती है, पर किस कंडीशन में, हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके, नाउ वी फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाला, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू। नाउ आवर टॉपिक इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो वही हम मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट कर लें, आरएमएस वैल्यू को। आरएमएस वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ई आरएमएस इक्वल टू, यहां पर क्या है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका रूट लेना है, मीन लेना है और स्क्वायर करना है। तो मीन कैसे लेते हैं, मीन और एवरेज। तो मीन कैसे लेते हैं, तो अभी बताया था, इंटीग्रेशन 0 to t e बाय टी एंड डी टी, ये हो गई मीन। किसका मीन है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसके बाद में स्क्वायर करके मीन लेना है, तो ई का हमने स्क्वायर किया और उसके बाद मीन लिया। फिर क्या हुआ, ई को स्क्वायर करो, यहां से चलिए स्क्वायर ऑफ ई, देन टेकिंग मीन, देन रूट, तो रूट लगा दिया, रूट 1/2। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। पहले हमने ई का हमको आरएमएस लेना था, तो ई का स्क्वायर किया, ठीक है, मीन लिया, इंटीग्रेशन अपॉन टी डी लेके, और देन रूट लिया। अब आगे वेरी सिंपल, अब इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट इसके पहले आपको मैं कुछ आइडेंटिटी बता दे रहा हूं जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, हर कंप्लीट वन साइकिल के लिए होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन n ओमेगा टी, n ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, n ओमेगा टी, इट विल बी 0। सपोज यहाँ पे 1 2 3, n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इक्वल टू t/2, ये दो आइडेंटिटी यूज करना है। जहां भी यूज होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया, तो आप t/2 लिख देना बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और साइन ओमेगा टी है या 2 ओमेगा टी है या 3 ओमेगा टी है डी टी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये आइडेंटिटी नोट करके रखें, और ये आइडेंटिटी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे या फिर यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे इसके प्रीवियस टॉपिक में बताया वैसे। अब यहाँ ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन टी को हमने बाहर कर दिया या फिर वैल्यू रखें, इंटीग्रेशन 0 to t, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया, अपॉन टी डी टी t/2, t/2, ये वैल्यू है। ई आरएमएस चल रहा है, ये निकाल रहे हैं हम लोग, ई आरएमएस की वैल्यू इन ब्रैकेट ई नॉट स्क्वायर बाय टी, कॉमन बाहर निकल जाएगा,
कांस्टेंट नंबर हो गया ए स्क्वायर नॉट अपॉन टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बाय टी। डायरेक्ट आइडेंटिटी अभी बताया हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आर द साइकिल 0 to t टाइम 0 to t इज टी बाई टू, ये 1/2 ले लिए। नाउ t to t कैंसल, स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा, ये ई नॉट अपॉन √2। तो ई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ई नॉट बाय या E0/√2, E0/√2। परसेंटाइल वैल्यू देखें तो आपको मालूम है कि √2 की वैल्यू 1.14 या फिर 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, ये एप्सिलॉन। ठीक, मीन्स जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 70.7% होता है, और मैक्सिमम पीक जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है वो कितनी होती है, 63.7%। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आरएमएस वैल्यू। तो हमने अभी क्या किया, आरएमएस वैल्यू आप ईएमएफ निकाला, मीन वैल्यू आप ईएमएफ निकाले हैं। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू आप करंट भी, ये कितनी हो जाएगी, 0.707 ऑफ I0, या फिर √2 के टर्म्स में लेंगे तो I0/√2। तो ये कुछ स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ईएमएफ में हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ देखा, और उनको मैं यहाँ पे डिनोट भी कर दे रहा हूँ फिर से। एवरेज वैल्यू के बाद में आरएमएस वैल्यू निकाला, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आई, E0/√2 आर इन परसेंट आई 70.7%, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ में सही, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद न्यू टॉपिक देखेंगे, और न्यू टॉपिक में हमने ये देखा कि इस अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सप्लाई करना है, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस होता है रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपेसिटर फर्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ा, कंडेंसर रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड जस्ट प्रीवियस चैप्टर ईएमआई में हमने पढ़ा था इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल। अब डिफरेंट सर्किट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन अ रेजिस्टिव सर्किट, इन अ कैपेसिटर सर्किट, इन अ इंडक्टर सर्किट, आर कंबाइंडली दैट मीन इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में करंट और ईएमएफ में क्या फेज रिलेशनशिप है, या फिर इंडिविजुअल जो कंपोनेंट कनेक्ट किए हैं तो आई और ई में क्या फेज रिलेशन है, ये हमको ऑब्टेन करना है। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। जब कोई सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो वो अपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज ओहमिक अपोजिशन, रेजिस्टेंस इज ओहमिक अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ electron offered by the material of conductor to the flow of charge is called resistance and SI unit is ohm. But जब सर्किट में या तो इंडक्टर कनेक्ट हो या कैपेसिटर कनेक्ट हो, कोई एक कनेक्ट हो, तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो हम अपोजिशन तो होगा, ए बी या इसको कनेक्ट करेंगे तो उस ऐसी सर्किट में अपोजिशन ऑफर्ड होता है, पर उस अपोजिशन को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस नेम नहीं देते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमने किसके लिए दिया है, द ओहमिक अपोजिशन ऑफर्ड, और इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो यहाँ का जो नॉन ओहमिक अपोजिशन है
उसको इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, इंडक्टेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टेंस? तो इंडक्टेंस इज द नॉन ओहमिक अपोजिशन ऑफर्ड बाय आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर इन अ ऐसी सर्किट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का सिंबल हमने एक्स लिया है, रेजिस्टेंस का क्या लिया है, आर लिया है। तो इंडक्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स, क्यों? क्योंकि या तो कैपेसिटर या इंडक्टर इट विल बी ऑफ टू टाइप्स। एक्स इज फर्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब आपके इंडक्टर कनेक्ट होगा ऐसी सर्किट में तो उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करना, एंड अनदर वन एक्ससी। एक्ससी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अभी आगे जब इसके डेरिवेशंस करेंगे, करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशन निकालेंगे, तब हमें यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल मिलेगी और एक्ससी की वैल्यू 1/ओमेगा-c मिलेगी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एल? इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। व्हाट इज c? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। एंड ऑल ऑफ हैव सेम यूनिट ओम। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो इसका भी ओम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी ओम होगा। ये तो बात हो गई कि इंडिविजुअल कंपोनेंट एल या सी या आर कनेक्ट हैं, तो हम उनको आर कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस बोलेंगे, सी कनेक्ट है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और एल कनेक्ट है तो बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। बट अगर इनमें से तीनों या कोई दो कनेक्ट हो तो उस समय उस अपोजिशन को इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस represented by Z. The combined opposition offered by resistance and reactance is called impedance. Impedance Z, इसकी भी यूनिट ओम होगी, और जब फार्मूला डेराइव करेंगे तो इसका फार्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज हो गया इस टॉपिक के लिए। इसके बाद और आगे कनेक्ट करेंगे।